اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں 4 تا 8 ہیں، 4 سے 8 سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ تمہارے شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے کرو گے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور مسجد بیت المقدس اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 4 سے 8۔ وَخَزَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو یعنی لوح محفوظ میں، کتاب سے مطلب لوح محفوظ، اور ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، یہودیوں سے کہہ رہا ہے۔ 2500-3 ہزار پہلے کی یہ بات ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کہا تو یہ 2.5 یا 3 ہزار سال پہلے کہی ہوئی بات ہے، جبکہ بنی اسرائیل کا دبدبہ تھا، ان کی اپنی سلطنت تھی اور ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ 2.5-3 ہزار سال پہلے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ،
यानी इख्तिदार मिला, पावर मिला, तो मुल्क में अमन क़ायम करने के बजाय जुल्म ज़्यादती करोगे, लोगों को क़त्ल करोगे और उन्हें बेइज्जत करोगे। वलतालुन्ना उलुवन कबीरा, अल्लाह की नाफरमानी करोगे और तकब्बुर करोगे, घमंड करोगे। चुनाचे जब बनी इसराइल ने पहली बार फसाद फिल अर्ज़ किया, उलुवन कबीरा किया, तो अल्लाह ताला ने आशूरियों, असीरियंस और बाबिल वालों के हाथों, बेबीलोनियंस के हाथों उनको सज़ा दी और हौलनाक तबाही बनी इसराइल पर नाजिल हुई। फिर जब बनी इसराइल ने तौबा की और अपने आमाल दुरुस्त कर लिए, तो अल्लाह ताला ने भी उनकी हालत दुरुस्त कर दी। उन्हें माल और औलाद से नवाजा और उनकी क़ुव्वत और उनको क़ुव्वत और इख्तिदार अता किया। और जब दूसरी बार बनी इसराइल ने फसाद फिल अर्ज़ किया और उलुवन कबीरा किया, तो अल्लाह ताला ने भी उनको रूमी शहंशाह, रोमन एम्परर टाइटस के हाथों सज़ा दी। उसने बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा करके यहूदियों की रियासत और उनकी आज़ादी को ख़त्म कर दिया। इसके बाद फ़िलिस्तीन से यहूदी इख्तिदार ऐसा मिटा, उसके बाद फ़िलिस्तीन से यहूदी इख्तिदार ऐसा मिटा कि 2000 बरस तक उनको फिर सर उठाने का मौका ना मिला। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उत्तुम उदना, हो सकता है कि तुम्हारा रब तुम पर फिर रहम करे, और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी फिर तुम्हें वही सज़ा देंगे। ये बात अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों से कह रहा है। जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों से ये बात कही जा रही है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुआरिफ़ुल कुरान में कहते हैं कि ये ज़ाबिता, तुम फिर जो वही करोगे तो हम फिर तुम्हें सज़ा देंगे। ये फार्मूला, अल्लाह का ये क़ानून, ये ज़ाबिता क़यामत तक के लिए है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह का ये ज़ाबिता क़यामत तक के लिए है। ये ज़ाबिता यानी वह इन उत्तुम उदना, अगर तुम वही हरकतें करोगे तो हम भी सज़ा देंगे, ये क़यामत तक के लिए है। सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह फ़ी ज़िलालिल कुरान, उनकी मशहूर तफसीर है ये, उसमें कहते हैं कि यहूदियों ने दुनिया में फ़साद किया तो अल्लाह ताला ने उन पर हिटलर को मुसल्लत कर दिया। अब उन्होंने फिर फ़साद और सरकशी शुरू कर दी है। इसराइल की शक्ल में पूरे शर्क़ औसत को, मिडल ईस्ट को मुसीबतों में मुब्तला कर दिया है। लिहाजा ज़रूरी है कि अल्लाह उनको उनकी सरकशी और फ़साद की सज़ा दे ताकि अल्लाह का वादा पूरा हो। ज़रूरी है कि अल्लाह फिर उनको सज़ा दे ताकि अल्लाह का वादा पूरा हो। अल्लाह का वादा पूरा होकर ही रहता है। यह है सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह का कहना। इन आयात के ज़िमन में डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसी सूरह बनी इसराइल की आयत 104 पर तवज्जो दिलाई है। इन आयतों की तफसीर करते हुए उन्होंने आयत 104 पर तवज्जो दिलाई है, और वो आयत ये है, व क़ुलना मिन बादिही लिबनी इसराइल अस्कुनू मिन बादिही लिबनी इसराइल अस्कुनुल अर्ज़ा फ़इज़ा जाअ वादुल आखिरती जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। तर्जुमा, और इसके बाद हमने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम लोग ज़मीन में आबाद हो जाओ, फिर जब आएगा पिछले वादे का वक्त तो हम ले आएंगे तुम सबको समेट कर। यह डॉक्टर इसरार अहमद का तर्जुमा है। तफसीर मज़हरी ख़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती, बहुत मशहूर
मुफस्सिर हैं और बड़े आलिम गुज़रे हैं। उनकी तफसीर मशहूर तफसीर मज़हरी में क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कल्बी के नज़दीक, कल्बी एक मुफस्सिर हैं पुराने ज़माने के जो गुज़रे हैं, कल्बी के नज़दीक वादुल आखिरा से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से आना है, और जीना बिकुम लफीफ़ा का ये मतलब है कि इधर उधर हर तरफ से मुख्तलिफ अक़वाम आएंगी। ये कल्बी का क़ौल है। इस आयत की तफसीर करते हुए डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये आगे की बातें डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की हैं, अक्सर व बेशतर मुफस्सिरीन ने वादुल आखिरा से आखिरत यानी क़ियामत मुराद ली है, यानी जब क़ियामत आएगी तो तुम लोग यानी बनी इसराइल जहाँ कहीं भी होगे सबको इकट्ठा करके हम मैदान हशर में ले आएंगे, मैदान हशर में। लेकिन मेरे ख़्याल में, डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इन अल्फाज में ये इशारा भी मौजूद है, ये इशारा भी मौजूद है कि जब आखिरत का वक्त क़रीब आएगा तो बनी इसराइल को हर कहीं से इकट्ठा करके एक जगह जमा कर लिया जाएगा। ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करके, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुठला कर, ये यहूदी बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब हो चुके थे। एक रसूल को झुठला कर ये तबाही के और अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ पहले ही हो चुके थे यहूदी। इसके बाद नबी आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को झुठलाकर इन्होंने अपने इस जुर्म की मज़ीद तौसीक़ भी कर दी है, अपने इस जुर्म को उन्होंने कन्फर्म कर लिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुठलाकर, यानी दो रसूलों को इन्होंने झुठलाया है इन यहूदियों ने, इन बनी इसराइल ने। चुनाचे अब अल्लाह ताला के नज़दीक इस यहूदी कौम की हैसियत उस कैदी की सी है जिसको उसके जुर्म की सज़ा सुनाई जा चुकी हो, मगर उसकी सज़ा की तामील में, एग्जीक्यूशन में अभी वक्त है, अभी सज़ा यानी नाफिज होना बाकी है, सज़ा पर अमल होना बाकी है। निशानियां तो ज़ाहिर हो चुकी हैं। अपने अपने रसूलों का इनकार करने वाली दूसरी कौमों की तरह, आद समूद वगैरह वगैरह दूसरे कौमों की तरह, अपने अपने रसूलों का इनकार करने वाली दूसरी कौमों की तरह इन यहूदियों की सज़ा भी ये है कि इस पूरी कौम को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे पहले नबियों की कौमों को अल्लाह ताला तबाह कर दिया, उनके इनकार की वजह से यहूदी भी जो है इस बात के हकदार बन चुके हैं कि उनको भी तबाह कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने दो रसूलों की तकज़ीब की है। यहूदियों के दौरे इंतशार को डायस्पोरा, दौरे इंतशार यानी जब दुनिया भर में फैल गए और जो है क्या है दुनिया भर में मारे फिर रहे हैं, उसको जो है दौरे इंतशार कहते हैं, अंग्रेज़ी में डायस्पोरा। यहूदियों के दौरे इंतशार को, डायस्पोरा को, यानी उन्हें फ़िलिस्तीन से बेदखल हुए 2 साल हो चुके हैं। फ़िलिस्तीन से यहूदियों को निकले 2000 साल हो चुके हैं। पिछली सदी तक भी 20th सेंचुरी तक भी 20वीं सदी तक भी इनकी कैफियत ये थी कि ये लोग पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे। चूँकि किसी इज्तिमाई सज़ा या अज़ाब के लिए इनका एक जगह इकट्ठे होना ज़रूरी था, इसलिए कुदरत की तरफ से इसराइल की रियासत क़ायम की गई। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं चूँकि इनको ख़त्म करने के लिए पूरी कौम को, ये पूरी कौम का एक जगह आना ज़रूरी था, इसलिए अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम किया कि इसराइल क़ायम हुआ और वो दुनिया भर से जो है इसराइल आ रहे हैं। इसलिए कुदरत की तरफ से इसराइल की रियासत क़ायम की गई और इस आयत के अल्फाज के ऐन मुताबिक व जीना बेकुम लफीफ़ा, हम फिर तुम्हें जमा करेंगे, इस आयत
کے عین مطابق دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین میں آباد کیا جا رہا ہے۔ اب یہ یہودی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے عظیم تر اسرائیل، گریٹر اسرائیل کا پلان تیار کر رکھا ہے۔ یہودی تو یہ سمجھ رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کا یہ پلان پورا بھی ہو جائے، مگر آخرکار یہ عظیم تر اسرائیل ان کے لیے عظیم تر قبرستان ثابت ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے ہے۔ یہود اس قوم کو 2000 سال بعد اب سیاسی اقتدار ملا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ 2000 سال بعد ان یہودیوں کو اب پولیٹیکل پاور ملا ہے، اور انہوں نے فلسطین میں اپنی ایک ریاست قائم کر لی ہے۔ انہیں یہ اقتدار برطانیہ اور دوسری یورپی قوموں کی مدد سے ملا ہے، اور ان کی یہ ریاست برطانیہ، امریکہ اور یورپی ملکوں کی مدد سے قائم ہوئی، اور ان کی مدد ہی سے یہ اب بھی قائم ہے اور چل رہی ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کے ناحق قتل عام اور ان کے گھر اور زمینوں پر ناحق قبضہ کر کے یہ قوم یہود اقتدار حاصل کی ہے، ناجائز قتل اور ناجائز قبضے کر کے، اور اپنی ریاست قائم کی ہے۔ یہ فساد فی الارض ہے، یہ ان کا فساد فی الارض ہے، یہ ان کا تکبر ہے، یہ ان کا گھمنڈ ہے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ ہے، اور لَتَعَالُنَّ عُلُوًّا کبیرہ ہے۔ اس قوم کا فلسطین میں فساد فی الارض اور ان کا تکبر تقریباً 100 سال سے جاری ہے، اور اب بھی چل رہا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم زمین میں پھر فساد مچاؤ گے تو ہم بھی تمہیں پھر سزا دیں گے۔ یہ یہودی سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کب سزا دے گا اور کس طرح سزا دے گا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال اللہ انہیں ان کے فساد فی الارض اور ان کے تکبر کی سزا ضرور دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔